All right, so let us talk about voting in parliament. So voting कैसे होती है? It is made up of decisions that are made based on a majority of vote from members present and voting, excluding the presiding officer. अब excluding the presiding officer का मतलब क्या है? That the presiding officer shall have a tie vote. That is, he shall vote only when there is tie. तो इसका मतलब है this person shall be having a casting vote. So voting, if nothing else is written, what kind of voting we are doing? If nothing else is written, we are doing only that is majority of members present and voting. Okay, so majority of members present and voting, what do we say it is? We say that this is, we are seeking a simple majority. Okay. So casting vote, presiding officer votes only in the event of a tie, exercising a casting vote to resolve the deadlock. So please remember, this presiding officer, he shall not vote in first instance. Okay. Now, what is the validity of proceeding? The validity of House proceeding is maintained despite unauthorized voting or participation or any vacancies in membership. What does this mean? इसका मतलब ये होता है that suppose there is a voting and there are vacancies in membership. So क्या voting होगा अगर vacancies are there, or will they wait for the vacancies to get fulfilled? It will continue. Doesn't matter. Doesn't matter whatever the vacancy is. Okay. You are correct. If quorum is met, they go ahead. जब कोरम जो है वो मीट हो जाता है, तब आप आगे बढ़ जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या वैकेंसी अगर जब होती है, जैसे मान लिया कि 543 सीट्स आर देयर इन द लोकसभा, उसमें से 3 सीट्स आर वेकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और डेथ, और एंड 540 members are there because of these 3 vacancies. So will the voting happen? Will the proceedings happen? Yes or no? Yes, so that is what I say, that the proceedings shall continue despite the vacancies. Okay, vacancies हो या ना हो, proceeding आगे बढ़ेगी. Okay, and then validity of house proceeding is maintained despite unauthorized voting. अगर एक आदमी, सपोज फॉर एग्जांपल उसका मशीन काम नहीं करता है, okay, so what will the voting entirely happen again, or would you focus on that particular individual? पूरा प्रोसेस आप दोबारा से करेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वोटिंग ठीक करेंगे, या उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, या उसको माइनस प्लस ऐसे करेंगे? सो यू विल नॉट, ओके, अनऑथराइज्ड वोटिंग जो है, ओके, अनऑथराइज्ड वोटिंग जो है, या अगर कोई पार्टिसिपेशन है, सो यू विल फोकस ऑन द इंडिविजुअल, नॉट द इंटायर प्रोसेस. If the seats are vacant, still the voting process will continue. The proceedings of the House shall not be in question due to unauthorized voting, participation, or any vacancies in membership. Is this clear? This point, validity of proceedings. Okay. Then let us talk about the voting procedure. How does voting procedure happens? I'll send you if I have. Okay. लक्ष्मीकांत का आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको भेज दूंगा. Initiation of voting. So after the debate on that particular matter is done, the speaker invites votes by asking members to respond with aye or no to the motion. Opinion of the speaker: if the speaker's assessment of the ayes or noes is not contested, the decision is finalized. What does this mean?
Suppose after we have a debate, whosoever is present in the house, I will say, please, those who are in favor of the motion, say aye. So those people will say aye. Okay, they will shout aye. And then I will ask, those who are not in favor say no. So they will shout no. If by auditory measure, if by just hearing, okay, the speaker can tell eyes have it or nose have it. Okay, so ये होता है क्या, पॉसिबल है क्या आज के जमाने में? इट इज पॉसिबल इन बिल्स विच हैव ए वन साइडेड टेंडेंसी और वन साइडेड ओपिनियन, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरीज, उसमें नोज कोई कहेगा? उसमें नोज कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा. सो बाई जस्ट बाई लिसनिंग यू कैन से कि ठीक है भाई ये पास है. बट लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन बिल्स where the opposition is against the government. There you require the electronic voting so that no kind of contest is made against the decision. So suppose if in the, okay, opinion of the speaker, the, if the speaker says that eyes have it, if the speaker says the eyes have it, then what is going to happen? The speaker's assessment, it can or cannot be challenged. If it is not challenged, the bill is deemed to be passed. Okay, but if it is challenged, okay, further steps are taken. What are the steps? Okay, so if the speaker's opinion is challenged, the lobby is cleared, and after a brief period, the question is put up again for voting. And if it is still contested, the votes are recorded through automatic vote recorder, or aye or no slips, और by members entering designated lobby. जैसे इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सबको समझ में आ गया. वो तो सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, देयर इज अ ह्यूज स्क्रीन एंड उस पे आईज एंड नोज आ जाएगा. देन द पॉलिटिशियंस, द एमपीज, दे स्टार्ट टू शाउट, अरे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, माई, ओके, माई वोट इज नॉट रजिस्टर्ड. सो द टेक्नीशियंस who are there, across the board, they go to the people, they go to the member of parliament and उनको हेल्प करते हैं. उसके बाद जो है, आफ्टर दैट फाइनल एक टैली आती है, and then we say that, okay, the eyes have it or the nose have it. Okay, but suppose automatic vote is not there, so you can also do it via slips. So slips को count करके eyes और nose अलग अलग करके आप कर सकते हैं. Third thing is that there can be lobbies. The speaker can say, those who are in favor of aye, please enter the right area. Those who are in favor of nose, please enter the left area. सो वहां पर आप जा सकते हैं, एंड देन बाय द काउंट ऑफ हेड और जस्ट बाय लुकिंग अक्रॉस हमें पता चल जाता है. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग. Simplified division. So in cases where a division is deemed necessary by the speaker, members may be asked to stand in their place for a count. So this method does not record individual voters name. आपको जो है क्या करना होता है, बस अपने जगह पे खड़े हो जाना होता है. If you are in favor of aye and if the speaker say those who are in the favor of no, तो अपने जगह पे आप खड़े हो जाते हो. So how many ways the vote can happen? By voice, by electronic record, by slips, by entering lobby, or by standing up on your place. So multiple options are given. Okay. Now, method of voting में you have voice voting. Okay. अगर voice voting challenge हो जाता है, तब what do we have? We have automatic vote recording, or the slips, or members entering lobby. Now, what is secret ballot? This is similar to open voting, but it ensures confidentiality. जहां पर एलईडी जो है, it does not flash the individual result. As an individual parliamentarian, your voting will not be recorded. Okay, वो अलग बात है कि बगल वाले ने आपका अगर चुगली कर दी, that is another thing. But on the screen or on any kind of
एरिया आपका जो इंडिविजुअल वोट है दैट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड. Okay, so it will not reveal the member's choice. Recording of votes by distribution of slips, so it is adopted in case of equipment failure. अगर इक्विपमेंट फेलियर हो जाए या उस पे भी लोग चिल्लाने लगे, दे से कि नहीं नहीं ये ईवीएम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, ये भी हैक है, so then slips can be distributed. And then finally physical count is the best possible thing. आप जो है फिजिकली काउंट कर दें, बोले जो आइज के फेवर में अपने जगह पे खड़े हो जाएं या हाथ उठा लें, एंड वी विल जस्ट काउंट यू आउट. सो देर आर सो मेनी मेथड्स. इफ द वॉइस वोट फेल्स, हमने यहां देखा था, अगर वॉइस वोट फेल कर जाता है, सो यू हैव ऑलमोस्ट 4 ways, 4 different ways by which you can do the voting. Is it clear to everybody? टोटल 4 तरीका है आपको वोटिंग करने का अगर वॉइस वोट फेल करता है. और वॉइस वोट जो है, इट इज इट इज कंटेस्टेड. ओके, सो कास्टिंग वोट पे हम आते हैं. द स्पीकर एक्सरसाइजेज ए कास्टिंग वोट ओनली इन द इवेंट ऑफ ए टाई. So in the first instance, we had talked about that in the first instance, allowed नहीं है स्पीकर को वोट करना. So this is a measure of neutrality so that the presiding officer is neutral. So can the presiding officer resign from the membership of political party to ensure neutrality? Can the speaker or the presiding officer of the house resign from the membership of the political party without attracting disqualification? Think, yesterday we talked about. पैराग्राफ 5 के बारे में मैंने कुछ बताया था. शेड्यूल 10, शेड्यूल पैराग्राफ 5. 10, it is not necessary, but what if the person resigns? What if the person resigns from the political party if he is the presiding officer? Yesterday, if you remember, paragraph 5, schedule 10, it will not attract disqualification. Okay, it will not attract disqualification. He can resign or she can resign. Okay, ठीक है. Do try to revise, keep revising. Okay, फिर बहुत बाद में क्या होगा, what is going to happen is that it will start to pile up. Okay, फिर लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं होगा. ओके, लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्या है ना, इफ यू आर कमिंग फॉर द लाइव क्लासेस, सो यू आर गिविंग ए वेरी गुड चंक ऑफ योर डेली टाइम, और आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है. इट इज मोर वैल्यूएबल देन माइन एज एन एस्पिरेंट. ओके, सो इसीलिए आप जो है अगर रिवाइज कर सकते हैं एक दिन पुरानी चीज, मे बी 2x पे वीडियो देख के या हैंडआउट ही पढ़ के, तो दैट विल बी फंटास्टिक. ओके, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट. The Indian Parliament conducts its business in Hindi and English as per the Constitution. However, provisions are made for the use of other languages. Okay. Language provision, presiding officer's discretion. Members may be allowed to speak in their mother tongue. Okay. So, आप जो है दो हम language देखते हैं, that the Parliament shall conduct its business in English and Hindi. So, English जो है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ए बाइंडिंग लैंग्वेज. एक तरीके से ये लैंग्वेज आप कह सकते हैं इट्स अ सेक्युलर लैंग्वेज, वेर एज हिंदी इज समथिंग विच इज टू बी प्रमोटेड बाय द यूनियन. ओके, विच इज टू बी प्रमोटेड बाय द यूनियन. सो इसमें क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, he can allow you to speak in your mother tongue. Doesn't matter. Okay, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है that it should be inserted into, it should be present in the 8th schedule or not. अगर उसका ट्रांसलेशन जो है, ऑलमोस्ट इन द लोकसभा, इफ यू विल से अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, उनके ट्रांसलेटर्स आपको मिल जाएंगे. सो सपोज अ पर्सन इज स्पीकिंग इन तमिल आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सो ऑल द पीपल यू सी, दे हैव दिस ब्लैक कलर हेडसेट ऑन देयर फेस, तो उसको डालते हैं अपने ओवर देयर हेड and then they listen to that. Okay, so members may be allowed to speak in their mother tongue, and
इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। सो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है हिंदी और इंग्लिश है। ओके, तो यहां पर एक चीज पता चलती है कि मदर टंग जो है it can be in certain instances of the language outside the eighth schedule, but does it happen often? देखिए, हमने क्या पढ़ा कि इंटरप्रिटेशन इज रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल द 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। जितने भी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस है उनका इंटरप्रेटर इज अवेलेबल हु इंटरप्रेट्स इट एट द सेम टाइम, but there is nothing written that the member should only speak, okay, in their mother tongue. So यहां पर क्या होता है कि in certain rare cases, although the 8 schedule is very comprehensive, it contains majority of the languages that the members have. In very very rare cases it might happen that आप जो है you are doing or you are speaking in a language which is outside this 8 schedule. लेकिन this does not happen, okay, in regular business. Majority of the members they can speak in English, or if not they can speak in Hindi. Okay, majority members can, and those who cannot, they are generally the speaker of any one of 8 scheduled language. Suppose there is a tribal MP, so he speaks his tribal dialect, but he also knows other languages like English, Hindi, and any other 8 scheduled language. So the presiding officer will tell him that speak in any 8 scheduled language so that we can have interpretation available. It is very difficult to get an interpreter of a language which is, let us say, spoken by 250, 300 people. तो उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है दैट इफ यू नो एनी 8 शेड्यूल लैंग्वेज तो आप उसमें बोलिएगा, बिकॉज इंटरप्रिटेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल दी 8 शेड्यूल लैंग्वेज। इफ स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज विदाउट इंटरप्रिटेशन फैसिलिटी, अब देखिए रेयर केस अगर आ जाता है कि आप ऐसे लैंग्वेज में स्पीक कर रहे हैं, इफ यू आर स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज which is without interpretation, that is maybe outside the 8 schedule, members must provide a translation in Hindi and English. अब यहां पर आता है कि suppose there is an STMP and he speaks a tribal dialect which is 300, okay, spoken by 300 of its tribemen, and he has gotten elected, he is a good politician, he has gotten elected as an MP. उस केस में क्या होगा, since the house does not have the translation facility, since the house does not have the translation facility, then the translation की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी मेंबर पे आ जाती है। नाउ द हाउस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट द पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, यू हैव टू ब्रिंग अ पर्सन, और आप जो है अपने स्पीच का हिंदी और इंग्लिश का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, योर स्पीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, और यू कैन ब्रिंग अ पर्सन हु कैन इंटरप्रेट इट। ओके, इज इट क्लियर नाउ? कोई भी डाउट बचा है? Officials Language Act 1963. So despite the original provision for discontinuing English as a floor language in 1965, Official Language Act allowed its continued use alongside Hindi. Original plan क्या था दोस्त? What was the original plan? Everybody will speak Hindi. लेकिन in the initial days, even the Tamil politicians were ready that okay, Hindi will be the binding language of the union. But it is due to the high-handed approach, it is due to the approach of the Hindi politicians who had a very, very high-handed approach regarding this, who had a very, very condescending approach. ये जो हिंदी है इसका जो स्प्रेड है, it failed and it led to the regionalism, okay, linguistic regionalism. सो उसके चलते क्या हुआ, हिंदी का जो प्लान था कि हम लोग 1950 से 15 साल के अंदर, हम लोग जो है 15-13 साल के अंदर हिंदी को स्प्रेड कर देंगे, बट दैट फेल्ड।
The legislative measures ensures inclusivity and accommodates the linguistic diversity. So how you are accommodating the linguistic diversity? By making English the link language. Okay. Now let us talk about the rights of ministers and attorney general in parliament. So ministers and attorney general hold unique privileges within Indian parliamentary system. We have done the attorney general class. So both ministers and attorney general have the right to speak and participate in the proceedings of either house of parliament, joint sitting of both houses, and any committee of parliament of which they are members of. And they are not entitled to vote in the houses or committee. तो यहां पर क्या है, हमने मिनिस्टर्स और किसका देखा है, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, both of them, they can attend the committee meetings, they can attend the sittings, joint sittings, and the proceedings of either house of parliament. What is the underlying reason? So cross house participation. This provision enables ministers to participate in the proceeding of the house of which they are not members of. Example के तौर पे, let us say the MEA, that is Jaishankar Saab, he is the member of Rajya Sabha, but he is the MEA and there is some issue, let us say the deportation issue that we are facing right now. उसके लिए जो है MEA साहब LS में जाके भी बात कर सकते हैं. Because since he is a minister, he has this thing कि आप जो है लोकसभा में भी जाके बोल सकते हैं, एंड यू कैन एड्रेस द लोकसभा, यू हैव द राइट टू ऑडियंस. And it allows a minister who is not a member of either house to engage in parliamentary proceedings. So अगर member किसी भी house का नहीं है तो can he remain so? A minister is not a member of either house, can he remain so indefinitely? क्या वो indefinitely ऐसा रह सकता है? The answer is no. Within 6 months, he has to get elected. Okay. Now let us come to the lame duck session. What is a lame duck session? So this refers to the last session of the outgoing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected, but before it is constituted. मतलब elections is done, and we all know who has gotten re-elected and who has not gotten re-elected. और उसमें जो है, who are the lame ducks? The lame ducks are the people who did not get re-elected. Okay, so let us say that 543 members are there, and उसमें से सिर्फ 300 members are elected, re-elected, and you have 243 members who are newly elected. Okay, or 300 members are re-elected. So how many lame ducks will be there in the outgoing Lok Sabha? How many lame ducks will be there? Very good, you understood it. 243. Why? Because these newly elected people, इन्होंने किसी का सीट तो लिया होगा, किसी का पत्ता तो काटा होगा. So this newly elected people, they have taken the seat of somebody, and then those people who did not get re-elected, those 243, they will be called as lame duck. क्या ये चीज क्लियर है या किसी को डाउट है? और ये लेम डक सेशन जो है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैपेंस, बट जनरली कहां हुआ था? 1957 और 1962 में नोटेबल एग्जांपल्स है, which they were convened to pass the vote on account to ensure government operation continues until the new Lok Sabha was constituted. And in the third Lok Sabha did not have a lame duck session because the fourth Lok Sabha was quickly constituted after the general election. तो यहां पर क्या होता है? लेम डक सेशन डिपेंड्स हाउ फास्ट द न्यू लोकसभा इज कन्वीन्ड. If the new Lok Sabha with the new members is convened fastly, so there is no need. Okay.
यस, यू आर करेक्ट। ओके, ये जो है, इट इज, इफ इट इज नॉट, if the new Lok Sabha is not convened quickly, then you need a lame duck session. Otherwise, you don't require. So this is not necessary thing. Types of majority in the Indian Parliament, क्लियर है सभी को? क्या इसको फिर से बताना होगा? अब यहां पर जो है, फिर से मैं बताता हूं, लेम डक सेशन, इसका पर्पस ये है ताकि वोट ऑन अकाउंट्स जो है आपका पास हो जाए, सो दैट द गवर्नमेंट जो है इट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन टिल द टाइम द न्यू लोकसभा कम्स इनटू एक्शन, so that the old members are used, old Lok Sabha is used, so that vote on account is passed. Is it clear? That is also not necessary, but it is a parliamentary convention. जो थैंक्स का होता है ना, जिसमें क्या नाम था उनका, स्वराज, सुषमा स्वराज सेड दैट मनमोहन सिंह वाज अ गुड मैन, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का जो होता है ना, that is also not necessary, but it's a parliamentary convention. Okay, it's a parliamentary convention. टाइप्स ऑफ मेजोरिटी समझ में आया? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, क्या इसको फिर से बताना होगा? सिंपल मेजोरिटी सभी को पता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, डिसीजंस इन आइदर हाउसेज और जॉइंट सिटिंग्स आर डिटरमाइंड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, वोट ऑन अकाउंट आगे पढ़ेंगे, उसको पहले मत लाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके, एप्लीकेशन, passing ordinary bills, money bills and financial bills, motion like adjournment, no confidence, confidence, censure and motion of thanks, removal of the vice president by the Lok Sabha, approval of president's rule imposition and proclamation of financial emergency। तो यहां ध्यान से देखिएगा, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय लोकसभा है। व्हाट अबाउट राज्यसभा? इफेक्टिव मेजोरिटी। अरे कैन, राज्यसभा ही तो इनिशिएट करता है, राज्यसभा ही तो इनिशिएट करता है, एंड इट इज अग्रीड बाय द लोकसभा, एंड दिस अग्रीमेंट इज वाया सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है अब? इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एक्सक्लूडिंग द वेकेंट सीट। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है उसको आप तभी कैलकुलेट करते हैं जब वेकेंसीज, जब आप वेकेंसीज जो है वो हटा सकते हैं। ओके, सो वेयर डू यू नीड इफेक्टिव मेजोरिटी? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज सी राज्यसभा, because it is, he is, okay, this person is the chairman of Rajya Sabha. And can you remove the vice president as the chairman only and keep him as the vice president? Very good. The answer is no. And removal of deputy chairman of Rajya Sabha and removal of speaker and deputy speaker of Lok Sabha. You need absolute majority for what? Majority of total membership of the house irrespective of vacancy. So this is not prescribed by the constitution as a standalone requirement, but it forms part of special majority requirement in certain cases. और what other case? Absolute majority और कहाँ यूज होती है दोस्त? To claim or form government, to claim and form government. Then you have special majority. स्पेशल मेजोरिटी के कितने टाइप्स हमने पढ़े? 4 टाइप। ओके, जिसमें से एक क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कहां पर है? आर्टिकल 249। देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये आर्टिकल 368 के लिए। देन वी हैव all these things, 2/3 present and voting, majority of total membership plus
50% of state legislature agree by a simple majority, and then finally क्या है, 2/3 of total membership, and this is for presidential impeachment. याद आया? Yes. अब हम बात करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में. क्वेश्चन आर, so it is a critical component of parliamentary proceedings in India, and it serves as a formal mechanism through which members of parliament hold the government accountable. Now यहां पर एक चीज देखिए, जो डिवाइसेस है, क्या ये आपका दिया हुआ है? नोट, व्हाट इज दैट? कौन सा रिपीट करना है? नोट. थर्ड वाला. ओके. ये चीज एब्सोल्यूट मेजोरिटी नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्टैंड अलोन. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है यू नीड एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट. आपको स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट कहां यूज करना है? इस यूजेज है एक ही चीज में. किस चीज में? इसका यूजेज है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने में. एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, दिस इज हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा? 272. विसे ना कि 272 सीट जो है अगर आ जाती है तब हो जाता है. अब ये क्या कह रहा है कि बाकी सारी चीजों में, इन द नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट एज अ स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट, बट इट इज क्लब्ड विथ अ स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट. जैसे हमने यहां पढ़ा ना, अगर आर्टिकल 368 को खुद से जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसी को अगर आपको, इफ यू वांट टू चेंज इट, सो देन यू नीड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. इज इट क्लियर? ऑलराइट. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो मेजोरिटी वाला पार्ट है ना, वो सभी को समझ में आए. अगर किसी का भी मेजोरिटी वाला जो पार्ट है, डिफरेंट मेजोरिटी, अगर नहीं समझ में आएगा, प्लीज आस्क मी, बिकॉज आई विल बी गिल्टी. ये मेरा एक मेजर, हमने बोला भी था मैंने पहले कि ये गलती मेरी है, दैट आई हैड मेड इट मोर कॉम्प्लेक्स, ओके, देन इट वाज रिक्वायर्ड. तो इसीलिए आपको जितने बार पूछना है आप पूछें, ओके, बट इट शुड नॉट बी दैट कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान आपको इसमें प्रॉब्लम है. ऑल राइट. सो उसके लिए आई एम रेडी टू टेक अनदर क्लास एज वेल. आप बस, आपको मुझे बताना होगा. यू जस्ट टेल मी. ओके, मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मैं फिर कह रहा हूं गलती मेरी थी. इस पे जो है मैंने ज्यादा, ओके, कंफ्यूज कर दिया. जहां जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया था. ऑल राइट. सो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक अभी सम पीपल वेर सेइंग कि उनको फाइनली समझ में आ गया, राइट? सो प्लीज, अगर नहीं भी आया है तो बता दीजिएगा. एनीवेज, मैं पूछना चाह रहा हूं कि डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं है. ओके, सो यहां पर क्या है, कहां से ये आता है? आइदर इट इज गिवन इन द रूल्स और इट इज ड्रॉन फ्रॉम कन्वेंशंस. ओके, आइदर रूल से है या कन्वेंशंस के थ्रू आप जो है इसको डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को निकाल सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन आर जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इसके थ्रू ही लेजिस्लेचर जो है क्वेश्चंस पूछ के क्या करेगा? लेजिस्लेचर विल एक्सट्रैक्ट द अकाउंटेबिलिटी. ओके, इट विल extract the accountability, okay, from the executive. Okay, so it is scheduled at the beginning of each parliamentary sitting, and this period allows for a lively exchange of information which enhances the transparency and
अकाउंटेबिलिटी। एक GS2 पॉलिटी में, मेंस में, दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन। ओके, जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डज द लेजिस्लेचर एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, देयर वाज ए क्वेश्चन। और उस आंसर में आपको क्या लिखना था? पार्लियामेंट्री डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ओके, देन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज देयर, पार्लियामेंट्री कमिटीज, क्वेश्चन आर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में उसमें आप लिख सकते थे, एंड देन ऑल दीज थिंग्स वुड हैव कंप्लीटेड योर आंसर। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या आ जाता है? स्टार्ड क्वेश्चन, इट इज मार्क्ड विथ एन एस्ट्रिक। तो स्टार्ड मतलब जो है एक एस्ट्रिक्स लगा दिया जाता है, और जब इट इज अ स्टार्ड क्वेश्चन, सो इट मींस इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, ओके, from the minister concerned, and it allows supplementary questions to follow based on the minister's response. So suppose I want an answer from Jaishankar Sahab on the deportation of Indians from the United States. So I will put a star. Okay, what will I do? I am going to put a star. Okay, और स्टार जब मैं कर दूंगा तो जयशंकर साहब हैज टू गिव मी एन ओरल आंसर। ओके, and it promotes direct interaction and enables immediate clarification on governmental action। तो जब मुझे दे रहे हैं वो जयशंकर साहब एक ओरल आंसर, सो आई एम फेस टू फेस विथ हिम, एंड देन आई कैन इमीडिएटली क्लैरिफाई एनीथिंग, that okay, how many people have come from America? So he will say 170, 180 people. Then I'll say, what is the government doing? On spot, my clarification is completed. Unstarred question. So it requires a written answer, and thus supplementary questions cannot follow. एंड ये जो है इसमें समझिएगा, स्टार्ड मतलब क्या है? ओरल आंसर इज नीडेड, वेर एज अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको चाहिए written answer. Okay, and it provides detailed information on specific issues which are regarded for future reference। तो इसको जो है आप फ्यूचर रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि देखो मिनिस्टर ने जो है ये बात कही थी। अगर कन्वेंशन कोई फॉलो नहीं कर रहा, देयर इज अ क्वेश्चन, अगर कन्वेंशन कोई फॉलो नहीं कर रहा तो वाई बाय विच लॉ विल बी दे पनिश? नहीं, कन्वेंशन को एनफोर्स करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। ओके, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू इंश्योर देर इज, ओके, कन्वेंशन आप जो है अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल नॉट अलाउ द प्रोसीडिंग टू हैपन, बट देर इज नो पनिशमेंट एज सच, rather you are immune from punishment inside the parliament। ओके, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्पीकर साहब, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की, that he should not allow anything which is breaking the rules and conventions to go forward। Is it clear? Okay, then you have short notice question. So this is asked with less than 10 days notice, and it also requires an oral answer, and this is similar to starred question, and this is used for matters of urgent public importance। जैसे कोई कुछ सिचुएशन हो गया, लेट अस से दैट सम अर्थक्वेक इज देयर और सम नेचुरल डिजास्टर इज देयर, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वहां पर आ जाता है। एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं? देयर आर क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, सो क्वेश्चंस कैन आल्सो बी डायरेक्टेड एट प्राइवेट मेंबर्स। हु आर द प्राइवेट मेंबर्स? प्राइवेट मेंबर्स आर नॉन मिनिस्टीरियल एमपीज, okay, and concerning bills, resolution or other business for which they are responsible, and the procedure mirrors that of question posed to ministers। जिस तरीके से आप मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, यू कैन ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन टू ए प्राइवेट मेंबर, सो दैट इंट्रा लेजिस्लेटिव, ओके,
15% कैप है ना ऑन एमपीज बिकमिंग मिनिस्टर्स, that is not more than 15% of Lok Sabha strength, the MPs become minister. अब बाकी के जो MPs बचे वो कौन हो गए? दे विल बी प्राइवेट मेंबर. कंगना रनावत क्या है? हेमा मालिनी क्या है? प्राइवेट मेंबर है. कंगना रनावत, हेमा मालिनी प्राइवेट मेंबर है. अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव कौन है? मिनिस्टर है. ओके. अश्विनी वैष्णव इज अ मिनिस्टर. सिंधिया कौन? मिनिस्टर. और ये कौन है आपके? लेटस से बांसुरी स्वराज कौन है? बांसुरी स्वराज कौन है? मिनिस्टर है या प्राइवेट मेंबर? ओके. बांसुरी स्वराज एमएलए है ना शायद, कि एमपी है? दिल्ली से क्या लड़ी थी वो? अभी हाल में लड़ी थी ना? यस. एमपी है ना शायद, न्यू दिल्ली से शायद लड़ी थी वो. है ना? तो एमपी, एमपी का इलेक्शन है ना. अगर एमपी है तो प्राइवेट मेंबर हुई ना. अब समझ में आया डिफरेंस? अब समझ में आया डिफरेंस? एमएलए नहीं है दोस्त, एमपी है. ओके. प्राइवेट मेंबर जो है ना, एमपी जो है, प्राइवेट मेंबर हो जाता है जब वो मिनिस्टर नहीं होता है. सिंपल. ओके. सेम जगह बैठते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं. ओके. और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है, इट इज प्रिंटेड इन डिफरेंट कलर्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, एंड इट इज ग्रीन फॉर स्टार्ड. सो स्टार्ड क्वेश्चन जो है उसका कलर कोडिंग हो जाता है, एडिशनल हेल्प के लिए ग्रीन होता है. व्हाइट इज फॉर अनस्टार्ड. अनस्टार्ड में क्या चाहिए आपको? अनस्टार्ड में रिमेंबर रिटन आंसर चाहिए. एंड लाइट पिंक इज फॉर शॉर्ट नोटिस, and yellow is for questions to private member. If you are asking question to private member, it should be yellow. And if it is pink, then it means short notice, and short notice require what? Oral or written? short notice जो है उसमें आपको 10 days के अंदर आपको जो है ओरल आंसर देना होगा. ऑल राइट. दिस हैज हैपेंड एक्चुअली. अगर आप आईएएस वगैरह बनते हैं तो आपको, या अगर आप मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तब यू नीड, ओके, यू विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड an answer. Okay, so this had happened to my father. What had happened was that जिस मिनिस्ट्री में वो काम करते थे, उसको एक आया, क्वेश्चन आया उसके मिनिस्टर को. सो द मिनिस्टर आस्क्ड द डिपार्टमेंट that tell me about this question, what will be the answer. So my father, he, हाँ, रिटन था. इट वॉज ए अनस्टार्ड. ओके, दिस वॉज एन अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड इट नीडेड अ रिटन रिस्पॉन्स. सो he had written the response on behalf of the minister and he had sent it to his boss. So what had happened was that his boss, he forgot to send the file आगे to the Lok Sabha. And उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने तक वहीं पर बैठे हुए थे. And then came a reminder from the Lok Sabha that the minister has not given the answer. So the minister became very furious. And then he called up my dad's boss and told him कि तुमने written answer नहीं दिया है. I had told you and this has led to my embarrassment. So that guy was sitting with the file, that written answer, for 3 months. And then उसके बाद जो है, they tried to frame my father also कि इसने नहीं दिया था. Thankfully everything was written, उस पे डेट वगैरह जो है लिखा हुआ था. All right. So उसके चलते my father was saved. उसके चलते my father was saved. Otherwise we would have been dismissed from service for doing this thing. Okay. So अब हम बात करते हैं, सब क्लियर है यहां पर किस टाइप का क्वेश्चंस होता है? एनी डाउट हेयर किसी को? ओके. अब हम आ जाते हैं 0 आर में. ओके. 0 आर जो है उसमें क्या होता है? इट्स अ बेसिकली टूल विच वॉज इन्वेंटेड. ओके, देखिए, आंसर, रिटन आंसर, ओरल आंसर जो है वो हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है. लेकिन 0 आर का कंसेप्ट जो है, दिस इज समथिंग विच वॉज डिवाइज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम.
सो ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक उपज है, आप ऐसे कह सकते हो। एंड इट अलाउज मेंबर्स टू रेज अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट ए फॉर्मल मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। मतलब ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई आपका कलर कोडिंग या 10 डेज 15 डेज कुछ नहीं होता है। सिंपली जो है, यहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कब होता है जीरो आर? इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। सो आपका क्वेश्चन आर होता है, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाता है, एंड कंटिन्यूज अंटिल द डेज शेड्यूल्ड बिजनेस बिगिंस। आप ऐसे समझिए कि मान लिया कि 10 बजे, फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट गो इन टू द रूल्स इन डेप्थ, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं दैट बाय 10 AM द क्वेश्चन आर एंड्स, and the next thing, the next debate or the next reading of the bill, it is to be at 12 p.m. ओके, तो ये जो 2 घंटे हैं, दिस कैन बी यूज्ड एज जीरो आर, and it offers MPs a flexible platform to discuss a wide array of issues without the formalities associated with other parliamentary devices। अब अगर ऊपर जाएंगे हम थोड़ा, तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है क्वेश्चन आर में, दिस इज ए फॉर्मल प्रोसीजर। यहां पर फॉर्मेलिटी जो है आपको करनी होती है, आपको पहले नोटिस देना पड़ता है, आपको बताना होता है कि यू नीड टू गेट द मिनिस्टर्स टाइम, एंड देन यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। वेयर एज हेयर इन द जीरो आर, जो भी समय बचता है फ्रॉम द एंड ऑफ क्वेश्चन आर टू द नेक्स्ट पर्पस ऑफ द हाउस और द नेक्स्ट बिजनेस ऑफ द हाउस, उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, and this originated in 1962 and it has become a key platform for discussing contemporary issues। अब जैसे इंडिया गॉट लेटेंट वाला जो केस है, उसको ही उठा दिया कि ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रहे हैं। ओके, कल हुआ है और एक दिन बाद पूछ लिया। अगर वो क्वेश्चन आंसर वाले फेज से जाते, अगर क्वेश्चन आर में जाते, सो दे नीडेड टू गो थ्रू द फॉर्मल रूटीन ऑफ सेंडिंग द क्वेश्चन। देन वहां से आता कि मिनिस्टर विल बी आंसरिंग ऑन दिस डे, ही विल बी कमिंग। ओके, सो ये सारी चीजें जो है जीरो आर में नहीं होती है। जीरो आर इज एन इंडियन, ओके, इंडियन इनोवेशन। ओके, यस, अगर मिनिस्टर किसी वजह से नहीं आए हैं, देन उनके जो स्टाफ है वो बता देंगे मेंबर को दैट मिनिस्टर इज नॉट प्रेजेंट ड्यू टू XYZ रीजन। ऐसे प्रेजेंट होना पड़ता है, ऐसे इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग इफ यू आर नॉट प्रेजेंट। अगर लेकिन किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से यू आर नॉट देयर, तब जो है वो पोस्टपोन करके बता दिया जाता है दैट ओके, नॉट दिस डे बट नेक्स्ट डे जो है आपको हम आंसर कर देंगे। टाइप्स ऑफ मोशंस की अब हम बात करते हैं। सो मोशंस क्या है? दीज आर फॉर्मल प्रपोजल्स। ऑफिशियल, फॉर्मल का मतलब क्या है? ऑफिशियल प्रपोजल। इज जीरो आर ए फॉर्मल प्रपोजल और जीरो आर ए फॉर्मल थिंग? इज नो, इट्स एन इंडियन इनोवेशन which is utilizing the excess time between the question hour and the next business of the house। ओके, जैसे होता था ना बचपन में, क्या करते थे हम, जब लंच ब्रेक का टाइम होता था तो कुछ बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले होते थे वो जेई का बुक्स निकाल के पढ़ने लगते थे लंच ब्रेक में। उसी तरीके से यहां पर जो छोटा सा आपको टाइम मिलता है बिटवीन द एंड ऑफ क्वेश्चन आर टू द नेक्स्ट बिजनेस, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वट एवर दैट इज, उसको आप जीरो आर की तरह यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन कंटेम्पररी इश्यूज इफ यू कैन रेज। सो मोशंस आर फॉर्मल proposal brought before the House for discussion and decision, and they play a crucial role in parliamentary business, allowing the House to express its will। तो टाइप्स ऑफ मोशंस क्या है? एक फॉर्मल प्रपोजल है जिसको लाके हाउस का जो विल है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, विल ऑफ द हाउस। एंड इफ द विल ऑफ द हाउस
में क्या आ जाता है, नॉर्मल मोशन आता है। अगर नॉर्मल मोशन आ रहा है, वो पास हो रहा है, इसका मतलब द विल ऑफ द हाउस इज दैट द गवर्नमेंट शुड स्टे। और अगर वो पास नहीं हो रहा है, देन वी से दैट द विल ऑफ द हाउस इज द गवर्नमेंट इज नॉट ओके समथिंग विच वी कैन हैव कॉन्फिडेंस अपॉन। तो फिर एक चीज आप देखेंगे कि यहां पर एक और मोशन ही होता है विच इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ओके, यस। अब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव मोशन। सो इट डील्स विद सिग्निफिकेंट मैटर्स रिक्वायरिंग द हाउसेज इंडिपेंडेंट डिसीजन, सच एज द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो सब्सटैंटिव मोशन कब आता है? इट इज फॉर वेरी हैवी मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स, जहां पर हाउस का इंडिपेंडेंट डिसीजन की जरूरत होती है। ओके, देन सब्स्टिट्यूट मोशन, it proposes an alternative to the original motion and if passed it replaces the original motion। इसका मतलब क्या होता है? आप जो है एक मोशन पे आर्ग्यू कर रहे हैं और अ मोशन इज इन पोजिशन, और उसको जो है आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं विथ अ डिफरेंट मोशन। तो आप क्या करेंगे, इसको पास करेंगे सेइंग कि ये जो ओरिजिनल मोशन है अब ये पुराना हो चुका है, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट विथ अनदर मोशन कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट मोशन। और सब्स्टिट्यूट मोशन में जनरली मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स होते हैं टू द ओरिजिनल मोशन, और वो क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। देन वी हैव द सब्सिडियरी मोशन। सो सब्सिडियरी मोशन में क्या होता है, इट रिलाइज ऑन एन ओरिजिनल मोशन फॉर इट्स मीनिंग एंड इंक्लूड्स एंसिलरी मोशन। यहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्ट कहाँ किया, सब्सटैंटिव से स्टार्ट किया जो सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए होता है, लाइक इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देन वी हैव सब्स्टिट्यूट मोशन विच इज देयर टू provide an alternative to the original motion, and this substitute motion will have any kind of amendments, changes and modification। ओके, अब यहां पर हम सब्सिडियरी मोशन की बात करें। सब्सिडियरी मोशन जो है ये बेसिकली क्या करता है, सब्सिडियरी हेल्प करता है ना किसी कंपनी का, कंपनी की अगर सब्सिडियरी हम कहते हैं ना, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी उसका हेल्प करता है मेन कंपनी का, या उसका थोड़ा सा बर्डन ले लेता है। यस और नो? वी से ना कि आईएसएसएफ जो है एक थिंक टैंक है। आईएसएसएफ एक थिंक टैंक है एंड आईएसएसएफ यूपीएससी सीएससी इज अ सब्सिडियरी टू दैट आईएसएसएफ। मतलब ये यूपीएससी की पढ़ाई करवाता है, ये सब्सिडियरी है। ओके, सेम कंपनी में इसका एक स्पेसिफिक काम है। सो उसी तरीके से सब्सिडियरी मोशन जो है उसका एक ओरिजिनल मोशन होना चाहिए। दिस इज नॉट ए स्टैंड अलोन मोशन, मतलब ये ऐसे नहीं आ सकता। ओके, ये जो है सीधा सीधा नहीं आ सकता, इट हैज टू कम इन सपोर्ट ऑफ एन ओरिजिनल मोशन। और इसमें क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है एंसिलरी मोशन, जिसमें इट फैसिलिटेट्स द कंडक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस in regular manner। Then superseding motion, so it is introduced during a debate on another issue and it aims to replace the current topic of discussion। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि डिस्कशन हो रहा है लेटस से कि इस आदमी का स्टैच्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स वाई जेड आदमी का स्टैच्यू बनेगा कि नहीं बनेगा। अचानक से इंडिया के किसी एसेट पे, एलओसी पे अटैक हो जाता है, तो विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, स्टैच्यू या एलओसी? हाउस उस समय एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितना स्टैच्यू का हाइट होगा, ये सब डिस्कस कर रहा है। और एलओसी पे अटैक हो जाता है तो एलओसी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो हम क्या देखते हैं कि सुपरसीड करके, और जो करेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको सुपरसीड कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट
topic. Amendment, so this basically modifies or substitutes part of the original motion, okay, to refine or alter its scope. ओके, तो यहां पर क्या होता है, सुपरसीडिंग मोशन बेसिकली जो आप देखते हैं कि जो करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट इज डीम्ड टू बी ड्रैगिंग और इट इज डीम्ड लेस इंपॉर्टेंट देन वॉट एवर इज प्रपोज्ड, तो उस समय सुपरसीडिंग मोशन आ जाता है. देन अमेंडमेंट जो होता है, बेसिकली इट कम्स, इट ट्राइज टू मॉडिफाई और सब्सटीट्यूट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन टू रिफाइन और ऑल्टर इट स्कोप. मान लिया कि लेट अस से दे आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब का कंटेंट अभी चल रहा है ना, इंडियाज गॉट लेटेंट वाला केस. सो यूट्यूब का कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो वो यूट्यूब कंटेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द यंग पीपल, बट उसके साथ साथ हमें उसको रिफाइन करना है दैट इट शुड ऑल्सो इंक्लूड विमेन्स राइट्स. वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ मिसोजिनिस्टिक कॉमेंट्स वेयर मेड ऑन द शो. सो हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट लाके जो ओरिजिनल मोशन था उसमें ये चीज ऐड कर देंगे कि वी शुड ऑल्सो डिस्कस अलॉन्ग विद द यूट्यूब रेगुलेशंस, वी शुड ऑल्सो डिस्कस द विमेन्स राइट्स. ओके, अब हम बात करते हैं क्लोजर मोशन. सो क्लोजर मोशन इज ए प्रोसीजरल डिवाइस विच इज यूज टू एंड ए डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द हाउस लीड्स टू एन इमीडिएट वोट. तो होता क्या है, डिबेट बहुत कर लिया, 10 12 15 दिन से सिर्फ डिबेट हो रहा है, एंड पीपल थिंक दैट इट इज इनफ. नाउ इट इज टाइम वी कट शॉर्ट द डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड गो टुवर्ड्स द वोट. सो उस समय जो है क्लोजर मोशन लाया जाता है टू एंड द डिबेट. एंड ये जो है अगर एक्सेप्ट हो जाता है, सो इट लीड्स टू एन इमीडिएट वोट ऑन द मैटर. एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन. 4 टाइप के क्लोजर मोशन होते हैं. एक होता है सिंपल क्लोजर विच इज अ मोशन टू एंड द डिबेट एंड पुट द मैटर टू अ वोट. वेरी सिंपल थिंग, आप डिबेट करना बंद करेंगे इमीडिएटली एंड देन यू विल स्टार्ट द वोट. एंड आप ये बोल रहे हैं वाया द सिंपल क्लोजर मोशन दैट वट एवर डिबेट वी हैड वॉज इनफ, बहुत हमने बकैती कर ली, अब जो है वोट करते हैं. द अदर इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन बिल्स और रेजोल्यूशन where the text is divided into sections and each debated and voted on as a whole. तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा बिल है, सम बिग बिल इज देयर, एंड वहां पर क्या होता है कि टेक्स्ट को जो है डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सेक्शन. ओके, और हर सेक्शन का डिबेट अलग से होता है. दिस इज फॉर बिल्स विच आर वेरी लार्ज इन स्कोप. और उसके बाद क्या होता है, उनको डिबेट किया जाता है, ईच ऑफ देम इज डिबेटेड एंड देन वोटिंग इज डन ऑन एज अ होल. तो इसीलिए जो है, सिंस इट इज डिवाइडेड, द टेक्स्ट इज डिवाइडेड, यू हैव टू क्लोज इट बाय कंपार्टमेंट्स. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल क्लोजर समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड सिंपल क्लोजर? सो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या होता है, जहां पर भी लेंदी बिल आता है, ओके, ऑलराइट, लेंदी बिल जहां पर भी आता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस जो क्लॉजेस होता है उसको हम ग्रुप कर देते हैं पार्ट्स में. इट इज ग्रुप्ड इन पार्ट्स, ओके, बिफोर द डिबेट कमेंसेस. और डिबेट जो होता है, इट कवर्स द पार्ट एज अ होल, ओके, एंड दस व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज वोटेड ऑन. उसको क्या किया जाता है, उस पे वोटिंग की जाती है. ओके, सो जनरली ये किसके लिए होता है, लेंदी बिल्स के लिए होता है. किसके लिए होता है, लेंदी बिल्स के लिए होता है. और लेंदी बिल्स जो है, ओके, लेंदी बिल्स जो है वो क्या करते हैं, उसको इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी रेड एज अ होल. तो इसीलिए उनको कंपार्टमेंट्स में आप डिवाइड करते हैं. किस में डिवाइड करते हैं, कंपार्टमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? एनी डाउट्स दैट यू गाइज हैव? आगे हम बात बढ़ते हैं.
कैंगरू क्लोजर में, सो व्हाट इज कैंगरू क्लोजर? It focuses the debate and voting on essential clauses while skipping over the less important ones. यहां समझिए कैंगरू क्लोजर में क्या होता है। कैंगरू क्या करता है? कैंगरू को कभी देखा है जंप करते हुए? अपने दांत बाहर निकाल के जंप करता है ना, देखा है कैंगरू को जंप करते हुए? दांत बाहर निकाल के जंप करता है ना ऐसे, उनके, है ना? यस। तो कैंगरू जैसे जंप करता है उसी तरीके से यू जंप ओवर द लेस इंपॉर्टेंट वंस। ओके, यू जंप ओवर व्हाट? यू जंप ओवर द लेस इंपॉर्टेंट वंस। और उसमें क्या होता है, सपोज अ बिल हैज 30 क्लॉजेस, और जिसमें से 10 क्लॉजेस आर वेरी एसेंशियल एंड 20 आर जस्ट वर्ड वर्ड सेलिंग, मतलब उसमें कुछ सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, यू विल डू दिस, यू विल डू दैट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है। सो कैंगरू क्लोजर में यू विल ओनली डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस while you will, okay, while you will do what? You will jump over the less important ones. Okay, then you have guillotine closure. तो ये न्यूज में था 2 साल पहले, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आया था। ओके, ठीक है। So it applies when undiscussed clauses of a bill or resolution are also put to vote along with the discussed one. इसका मतलब क्या होता है? Suppose there are 100 clauses and a lot of time is taken 30 clauses तक आते आते, and the government says that we need this now. Okay, we need this now. तो क्या होता है, हम गिलिटीन कर देते। गिलिटीन देखा है? व्हाट इज गिलिटीन? दिस वाज यूज्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन टू कट द हेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हेड को काटने के लिए। ओके, तो ये जो है गिलिटीन कब यूज किया जाता है? जब मान लिया कि 100 क्लॉजेस है, उसमें से 30 क्लॉजेस आर डिस्कस्ड, 70 आर लेफ्ट, तो 70 को काट देते हैं, मतलब 70 पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से गिलिटीन को लाया जाता है। गिलिटीन क्लोजर को कब लाया जाता है? टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। अब समझ में आया? इसमें से किसी भी मोशन का आपको डाउट है? क्लोजर मोशन में किसी को डाउट है? सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कैंगरू क्लोजर, गिलिटीन क्लोजर, सबको समझ में आया? आपको क्लियर है? ओके, शावरी भाई क्लियर है? सौम्या सलोनी, इज इट क्लियर? साइडक, वजीक भाई, सारे सभी को क्लियर है? ऋषिकेश, एनी डाउट्स? ओके, वंडरफुल। अब हम बात करते हैं प्रिविलेज मोशन के बारे में। सो प्रिविलेज मोशन जो है, लेट जस्ट मिनट, यस, ये क्लोजर, 1 मिनट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में डाउट है किसी को? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का मतलब है बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बहुत लेंदी बिल है, यू नो दैट इट इज वेरी लेंदी टू बी डिस्कस्ड इन वन गो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको स्प्लिट कर रहे हो इनटू पार्ट्स, एंड देन ईच पार्ट इज डिस्कस्ड एंड देन वोटेड अपॉन। ओके, और इसी को जो है आप क्या कह रहे हो, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तो ये लेंदी बिल के लिए यूज होता है, और उसको सेक्शंस में ब्रेक किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग ए डिबेट, और फिर हर सेक्शन जो है वन एट अ टाइम उसको आप डिबेट करते हो, और फिर उस पूरे सेक्शन पे आप वोटिंग करते हो। क्योंकि कुछ बिल्स आपने देखे हैं, यू नो, दे गो ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिविलेज मोशन पे तरफ। सो प्रिविलेज मोशन, दिस कंसर्न्स द ब्रीच ऑफ parliamentary privilege by a minister, and it is means for members to allege that a minister has either withheld facts or presented distorted information potentially misleading the house or its member, and it aims to censor the concerned minister for the breach of privilege. So privilege motion जो है, what does it do? It censors। तो सेंसर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज, कैन आई से दैट
दिस इज बेसिकली टू ह्यूमिलिएट द मिनिस्टर, टू ह्यूमिलिएट द मिनिस्टर। आप जो है सेंसरिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज बेसिकली ए फॉर्मल कंप्लेंट, ओके, दैट द मिनिस्टर हैज मिसलेड द हाउस, ओके, ऑल राइट। तो ये जो है, ओके, दिस प्रिविलेज मोशन इज बेसिकली ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहां पर जब भी मिनिस्टर जो है वो कुछ करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, तो वहां पर फॉर्मल कंप्लेंट की तरह देखा जाता है, इसको जो है फॉर्मल कंप्लेंट की तरह देखा जाता है। एंड बेसिकली सेंसर आप करते हैं, क्या करते हैं? सेंसर आप करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हैं, ओके। कॉलिंग अटेंशन मोशन, व्हाट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये एक और बार, ठीक है। देखिए प्रिविलेज मोशन क्या, देर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। उसमें क्या होता है, यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, यस और नो? आपका राइट होता है ना कि यू हैव अ राइट टू बी हर्ड एज अ मिनिस्टर इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो वहां पर क्या, अगर इफ यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, यू ऑल्सो हैव ए ड्यूटी टू बी ट्रूथफुल। इफ यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, यू हैव अ ड्यूटी टू बी ट्रूथफुल, ओके। सो हुआ क्या है यहां पर, दैट व्हेन यू लाई एज अ मिनिस्टर, आपने कुछ गलती बता दिया या गलत कुछ बोल दिया, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो हाउस को देना चाहिए था आपने विथहेल्ड कर दिया, तब आपको कहा जाता है कि आपने अपने प्रिविलेज का ब्रीच किया है। वी हैड गिवन यू द प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग एंड देन यू हैव मिसलेड द हाउस। तब ये प्रिविलेज मोशन जो है एक ऑफिशियल कंप्लेंट की तरह काम करता है। और ये जो कंप्लेंट है अगर पास हो जाती है, तब क्या मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है? अगर प्रिविलेज मोशन पास हो जाती है, नहीं, दिस इज बेसिकली टू सेंसर, ह्यूमिलिएट, एकदम चुप, चुप रहो, ऐसे बोलना, तुम झूठे हो, दिस इज सेंसरिंग, ओके। दिस डज नॉट, ओके, दिस डज नॉट tantamounts टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट और एनीथिंग। कॉलिंग अटेंशन मोशन, it allows the member to highlight matters of urgent public importance and request a comprehensive statement from the concerned minister. Calling attention से नाम ही से पता चल रहा है, कॉलिंग अटेंशन यहां पर नाम ही से पता चल रहा है आपको, ओके। तो यहां पर जो है बेसिकली अगर आपको हाउस का, if you want the house or a concerned minister's attention, so you can bring this, and this mechanism ensures that significant issue receive their immediate attention. And unlike the zero hour, calling attention motion is present in the rules of procedure. Please remember, zero hour जो है, it is not present, it is a Indian parliamentary construct, it is not present in the rules of procedure, whereas calling attention motion is present. So unlike the zero hour, the calling attention motion is formalized within the rules of procedure, underscoring its role in parliamentary decorum. Now we have adjournment motion. So adjournment motion is a very, very powerful parliamentary procedure, and it is designed to address matters of urgent public importance. और ये क्या होता है, when it is passed adjournment motion, it compels the house to discuss a specific issue immediately, okay. एंड इसके लिए जो है adjournment मोशन के लिए इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, एंड द डिस्कशंस ऑन एन adjournment मोशन शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2.5 hours। सो 2.5 घंटे के लिए जो है आपको डिस्कस करना होता है adjournment मोशन एटलीस्ट, ओके। एंड 50 मेंबर्स जो है उसका सपोर्ट चाहिए होता है फॉर इट टू बी एडमिटेड। And the motion must concern a definite factual urgent matter. It cannot be vague. Please remember, adjournment motion cannot be vague. All right. Yes, minimum जो है at least 2.5 hour आपको डिस्कस करना होता है. And the motion must concern a definite factual urgent matter. It cannot be vague.
यू कैन नॉट राइट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नहीं, यू हैव टू राइट व्हाट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. Is it LOC violation? Is it, something else? Is it declaration of war or something else? Okay. And this device is not available in the Rajya Sabha, underscoring its significance in directly questioning the government's action. So यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा कि ये जो adjournment motion है ये क्यों नहीं present है. Why? Because if you remember that the government is collectively responsible to the Lok Sabha. Okay, government is collectively responsible to whom? It is collectively responsible to the Lok Sabha. Okay. अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन. वी हैव डिस्कस दिस. इसका क्या होता है, इट्स मैकेनिज्म. लोकसभा में ही आप ला सकते हैं. ओके, राज्यसभा में आप नहीं ला सकते. वाई? बिकॉज लोकसभा में ही जो है यहां पर बेसिकली टेस्ट होता है गवर्नमेंट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. एंड दिस रिक्वायर्स द बैकिंग ऑफ 50 members, and a successful no confidence motion leads to the government's fall, necessitating either the formation of a new government or that of an if it is unfeasible, new elections. तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए दोस्त? नो कॉन्फिडेंस मोशन तो चलिए सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया आपने, बट देन आफ्टर द गवर्नमेंट रिजाइंस, सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट रिक्वायर्स व्हाट? एब्सोल्यूट मेजोरिटी और नॉट? अब समझ में आया? अब समझ में आया व्हाट डिड आई मीन बाय पासिंग ऑफ ए मोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट? यस, इसको नहीं भूलिएगा. Confidence motion. So in contrast to the no confidence motion, the confidence motion is initiated by the government itself, and this is for relevant for hung parliaments, minority government और coalition government. तो मैंने बताया था मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वो लेके आए थे आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो दिस इज पॉलिटिकल सिग्नलिंग कि हमारे पे कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो it means that your government is strong, it has the numbers. If it is not passed, then it is problematic, you have to, okay, resign. ये कौन से रूल्स में होता है आर्टिकल? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर होता है? रूल 198 याद आया? रूल 198. एंड व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस मोशन? it is considered a general motion under rule 184. कॉन्फिडेंस मोशन का कोई अलग से रूल नहीं है. ओके, इसीलिए इसको जनरल मोशंस के कैटेगरी में रखा जाता है अंडर रूल 184. एंड गवर्नमेंट जो है वो इसको क्यों यूज करती है? कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस तो समझ में आ गया. कॉन्फिडेंस मोशन को पॉलिटिकल सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है टू असर्ट योर स्ट्रेंथ दैट वी हैव द नंबर्स. ओके, फ्लोर टेस्ट जो है, हमने क्या बात की थी? स्टेट के कंटेक्स्ट में बात की थी, गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में. सो फ्लोर टेस्ट जो होता है वहां पर क्या हो रहा है? फ्लोर टेस्ट जो है वहां पर आप बेसिकली यू आर आस्क्ड बाय द गवर्नर टू शो कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज वाया सिंपल मेजोरिटी. सो बेसिकली फ्लोर टेस्ट जो है इट इज एन एक्स्ट्रा स्टेप. It is what? It is an extra step that you take to present a confidence motion. Okay, is it clear? It is an extra step that you take so that you can present a confidence motion. फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट होता है when the government is in problem. Okay, government is in problem and no confidence motion is not brought. तब गवर्नर कैन preemptively, or the speaker, if the speaker is there, he can preemptively ask, okay, the government to show confidence. Okay, क्योंकि यहां पर ये होता है ना कि आपने जाके गवर्नर को ये बोल दिया कि सर ये जो सरकार चला रहे हैं ना उनके पास नंबर नहीं है, उनके पास जो है नंबर नहीं है, और दे कैन टेक.
तो फ्लोर टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, ओके, बेसिकली जो है वहां पर उनको कहा जाता है कि प्लीज यू शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल राइट। सो गवर्नर के पास ये पावर जो है, हम कहां से पढ़ते हैं, ओके, हम कहां से पढ़ते हैं, हम आर्टिकल 174 जो है उससे, और 175 जो है उससे पढ़ते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 175 जो है उसमें एक क्लॉज 2 है, ओके, जहां पर ही कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर ए फ्लोर टेस्ट, ओके। सो ये बेसिकली देखिए कब होता है ना, दिस फ्लोर टेस्ट इज बेसिकली व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट ब्रॉट। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप ब्रिंग कर लेते, इफ यू ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंटरनल पार्टी में डिफरेंस है, इंटरनल पार्टी में डिफरेंस है, देयर आर मर्मर्स दैट द जो सीएम साहब चला रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, ओके। तो इसीलिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आई थिंक 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट द गवर्नर कैन नॉट कॉल फॉर ए फ्लोर टेस्ट, दैट इज दे कैन नॉट आस्क द गवर्नमेंट टू शो कॉन्फिडेंस इन द, टू शो कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी मेंबर्स। क्योंकि इसके पहले हो रहा था ऐसा, अगर ऐसा लग रहा था कि फैक्शनलिज्म है विद इन द पार्टी, ऑल राइट, सो जब हाउस सेशन में है, जब हाउस सेशन में है तब कौन बुलाता है फ्लोर टेस्ट, द स्पीकर कैन, व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन तब गवर्नर बुलाते हैं, ओके। और यहां पर क्या है, ओके, यहां पर क्या है कि ये जो गवर्नर साहब बुलाते हैं फ्लोर टेस्ट, ओके, वो क्यों होता है, व्हेन देयर इज अ डाउट दैट सीएम हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि वेन एवर द मेजोरिटी इज इन डाउट ऑफ द गवर्नमेंट, अ फ्लोर टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड, ओके। इज इट क्लियर? और ये कब होता है, जनरली कोलिशन गवर्नमेंट जब होती है, जब भी कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो उस समय इफ देर आर डाउट्स दैट द कोलिशन हैज विड्रॉन द सपोर्ट और दे डोंट हैव द नंबर, ओके, तो वहां पर क्या है, दे से दैट ये जो फ्लोर टेस्ट है इट बिकम्स नेसेसरी, एंड इट इज सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इट शुड बी डन एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ओके। इज इट क्लियर? दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है व्हेन देयर इज वन और मोर इंडिविजुअल जो स्टेक पे दे रहा है, मतलब कह रहा है कि मेरा है ये सीएम सीट, मेरा है, ओके। नो कॉन्फिडेंस इज रूल 198, confidence motion is not mentioned, that is why it is clubbed with the general motions under rule 184। आर्टिकल्स नहीं है दोस्त, रूल इज डिफरेंट, आई टोल्ड यू। पार्लियामेंट में रूल्स भी चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी चलते हैं, और कन्वेंशंस भी चलता है। तो नो कॉन्फिडेंस मेंशन मोशन कहाँ मेंशनड है, इट इज मेंशनड इन रूल 198, ओके। और आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं उसमें आर्टिकल 75 इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज आर्टिकल 75 टेल यू? व्हाट डज आर्टिकल 75 टेल यू? कि आपको हमने बात की थी ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमने बात की थी ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑल राइट। तो ये चीज जो है आपको समझना होगा। इज इट क्लियर? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई फ्लोर टेस्ट के बारे में? ओके, इस पे आई थिंक वी कैन डू, ओके, वी कैन डू अ क्लास ऑन फ्लोर टेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। यू हैव रिकोर्स, ओके, you have recourse, that is true, okay, that is true, you have recourse कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं,
ओके, लेकिन यहां पर जो है, ओके, यहां पर जो है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर फ्लोर टेस्ट जब होता है तो आपको प्रीएम्प्टिवली कहा जाता है कि वाई गो थ्रू द हैसल, वाई गो थ्रू द हैसल। ऑल राइट, आप जो है डायरेक्टली प्रूफ कर देना, आप जो है डायरेक्टली प्रूफ कर दें कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। एंड कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय विच मेजोरिटी, कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय विच मेजोरिटी? कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कह रहा हूं, सिंपल। एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट फॉर्मेशन? जब आपको गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन एब्सोल्यूट, मोशन पासिंग सिंपल, गवर्नमेंट फॉर्मेशन एब्सोल्यूट। प्लीज इसको भूलिएगा नहीं, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है? और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या कहीं स्टैंड अलोन रिक्वायर्ड है किसी भी किसी भी मोशन को पास करने के लिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिर्फ एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड है स्टैंड अलोन? आई एम आस्किंग। वेरी गुड, इट इज नॉट, इट इज ओनली रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड एज पार्ट ऑफ टाइप टू स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर है अब? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? ओके, देखिए लेजिस्लेचर में यूज होता है, ये कहां पर होता है? ये लेजिस्लेचर में यूज होता है। ऑलराइट, तो यहां पर अगर स्पीकर साहब प्रेजेंट है, सेशन में चल रहा है हाउस, अगर सेशन में हाउस चल रहा है तो स्पीकर कैन कम एंड द स्पीकर कैन से दैट ओके यस यू प्लीज होल्ड, ओके यू प्लीज होल्ड द फ्लोर टेस्ट। यस ऑफ कोर्स, आप जहां से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे वही ना, उसी हाउस में आप करेंगे ना फ्लोर टेस्ट। बीजेपी जब 2014 में आई थी तो क्या उसके पास राज्यसभा के नंबर्स थे? क्या उसके पास उस समय राज्यसभा के नंबर्स थे जब 2014 में आई थी? नहीं थे, उस समय कांग्रेस थी मेजोरिटी में। सो क्या बीजेपी को अलाउ किया था सरकार बनाने के लिए? हम्म, द आंसर इज यस। ओके, तब किया था। आपको एलएस में मेजोरिटी चाहिए दोस्त, अगर गवर्नमेंट आपको बनानी है। सो एलएस की एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, आरएस से तो मतलब ही नहीं है, राज्यसभा से, राज्यसभा से जो है आपको मतलब ही नहीं है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, फ्लोर टेस्ट का एक क्वेश्चन था, आई थिंक सौम्या वाज आस्किंग कि क्या ये पार्लियामेंट में हो सकता है। आई थिंक यू वेर आस्किंग, कोई पूछ रहा था कि राघवेंद्र जी पूछ रहे थे पार्लियामेंट और स्टेट कहाँ होता है? ये तो दोनों जगह हो सकता है, ये जो चीज है दोनों जगह होता है, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? हो सकता दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? स्टेट्स में होता है। ओके, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पार्टी के इंटरनल डिफरेंस के चलते फ्लोर टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ doubts are there on the CM's, okay, on the CM's eligibility, तब जो है एट द अर्लीस्ट फ्लोर टेस्ट करा के डाउट शुड बी सेटल्ड। ओके, बिल्कुल मिलेगा, डाउट शीट क्या हैंड आउट भेज देंगे। ओके, ये चीज समझ में आई आपको? अब आप पूछ रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं ला रहे? आप एक चीज मुझे बताएं कि क्या जब हाउस सेशन में नहीं होगा तो पॉसिबल है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना? जब हाउस सेशन में नहीं है तब क्या पॉसिबल है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना? नॉट पॉसिबल। अब आप मुझे बताएं कि फ्लोर टेस्ट, is it an extra step leading to a confidence motion, and this can be brought in at the insistence of the governor when the house is not in session? Yes or no? ऐसे तो स्पीकर साहब करेंगे, लेकिन जब गवर्नर भी कर सकते हैं ना? यस,
तो अब समझ में आया कि कॉन्फिडेंस मोशन की क्या जरूरत है वाया फ्लोर टेस्ट, जब नो कॉन्फिडेंस इज प्रेजेंट। जब नो कॉन्फिडेंस एज अ टूल इज प्रेजेंट तो फिर कॉन्फिडेंस मोशन की क्या जरूरत है? बिकॉज जब हाउस सेशन में नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि नो कॉन्फिडेंस इज द इनिशिएटिव ऑफ whom? इज इट द इनिशिएटिव ऑफ द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन? ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन अगर नहीं ला रही है लेकिन फिर भी एक्सटर्नली डाउट कास्ट कर रही है, they are not bringing the no confidence motion because it इंटरेस्टिंग थिंग बता रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला रहे हैं बिकॉज द ऑपोजिशन पार्टी इज नॉट श्योर ऑल्सो कि ये पास होगा कि नहीं होगा। बट वॉट इज हैपनिंग, दे आर कास्टिंग डाउट्स, गोइंग अराउंड सेइंग कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास तो नंबर ही नहीं है। सो देन फ्लोर टेस्ट कैन हैपन in which governor holds the power to ask for, similarly president has the power to ask for parliament. Yes, so this is what we have seen, but floor test का precedence ज्यादा है बिकॉज यहां पर जो है जुडिशियल रीडिंग्स और जुडिशियल केसेस जो है वो हम देख रहे हैं। ओके, सो ये चीज जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? Is it clear? So what happens in a floor test? The chief minister or the prime minister, he shall move a motion seeking a vote of confidence. Okay. Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है? अब किसी को डाउट है तो बताएं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। सेंसर मोशन समझ में आ गया सभी को? सो सेंसर मोशन जो है उसका रीजन फॉर अडॉप्शन, इट मस्ट स्पेसिफाई द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा इफ इट इज फोकसिंग ऑन एनी पर्टिकुलर पॉलिसी। ऐसे वेगली नहीं ला सकते आप सेंसर मोशन। ये नहीं कह सकते कि मोदी जी का कपड़ा मुझे पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यू कैन से दैट मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन मणिपुर, मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी, दिस इज द स्पेसिफिक थिंग। ऐसा नहीं कह सकते मोदी जी मुझे पसंद नहीं है, यू कैन नॉट से लाइक दिस। देन इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर or a group of minister or even an entire council, and purpose it is aimed at censoring the council of minister for any specific policies and actions and passing, please remember this, passing a censor motion does not necessitate the council of minister to resign from office, whereas what about no confidence motion? सेंसर मोशन पास हो गया, आप सेंसर कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, you are just censoring them, nothing to do with resignation. This basically weakens the perception of the government, but the government stays whenever there is a censor motion. But what about no confidence? If no confidence is passed, then it tantamounts to resignation. Okay, it leads to resignation. Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है सभी को? नाउ लेट अस कम टू मोशन ऑफ थैंक्स। So motion of thanks is a significant parliamentary procedure initiated after the president's address at the beginning of the first session, after each general election, and the first session of every fiscal year. पहले क्या होता था, हर सेशन के पहले, हर सेशन के पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं या साहिबा, उनका एक स्पीच होना होता था। बाद में ये देखा गया कि यूजलेस है। ओके, बाद में जो है ये देखा गया यूजलेस है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ओके, दिस इज व्हाट दे चेंज्ड वाज कि अब हर सेशन के बाद नहीं, अब आपको जो है एक तो बिगनिंग ऑफ आफ्टर जो जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है, और उसके बाद जो है फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, तब जो है आपका स्पीच होता है। तो स्पीच के बाद जो है यू हैव टू, ओके, यू हैव टू pass the motion of thanks. Now this is important, please remember this. President's address is followed by a discussion in both houses of parliament and it culminates in a vote on motion of thanks. किसको थैंक्स दे रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब या साहिबा को, कि आप आए और हमसे जो है हमारे हमको संबोधित किया और यू हैव addressed us. सो प्रेसिडेंट एड्रेस इज फॉलोड बाय अ डिस्कशन। डिस्कशन कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत पहले जो है जनरली थोड़ा सभ्यता सिविलाइज्ड डिस्कशन यूज्ड टू बी देयर, बट नाउ you know it has transformed into something else. But
At the end of that discussion, you have to pass a motion of thanks. And passing this motion is crucial. Why? Because if this motion is not passed, it tantamounts to the defeat of the government, which reflects a lack of confidence. So this is equal to no confidence. Okay. And this offers parliamentarians an opportunity to debate the government's performance and policies and allowing for scrutiny and accountability. So ये बहुत ज़्यादा powerful है motion of thanks. And if the motion of thanks is not passed, it is equal to the defeat of government. Okay. Then no day yet named motion. So this motion, it basically represents a parliamentary request that has been acknowledged by the speaker but has not yet been scheduled for discussion. What does this mean? आपने accept कर लिया है that okay, dear member, your motion is accepted, but I have not allotted a day for the discussion. And then the speaker, in consultation with the leader of the house or based on the business advisory committee's recommendation, decides on a suitable date for motions discussion. And this procedure allows for accommodation of important discussions without disrupting the parliamentary business. Then comes dilatory motion, and it is employed to postpone a debate on a bill or any other business, and it can be introduced by any member after the motion has been made and when they want to delay the ongoing motion. तो डिले क्यों करना चाह रहे हैं? हो सकता है दे वांट कि कुछ रीजनेबल और इनपुट आ जाए, and the speaker has the authority to put the question on a dilatory motion immediately or refuse even. So हो क्या सकता है कि अगर आप चाह रहे हैं यूजिंग डायलेटरी मोशन दैट यू वांट टू डिले अ डिस्कशन, so it is the speaker's prerogative whether he or she will allow the dilatory motion and delay in the discussion or not. It can be rejected as well. Okay. And then you have point of order. So this is a procedural device which is used by the members to question the proceedings adherence to the established rules of procedure or constitutional provision which regulates the house business. So ये क्यों होता है? इसका पर्पस क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का? इट इज टू इंश्योर दैट कंडक्ट ऑफ द हाउस जो है इट अलाइन विथ इट्स रूल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई आप में से पूछ रहा था ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कन्वेंशंस एंड द रूल्स आर नॉट फॉलोड, क्या जेल हो जाती है या पनिशमेंट मिलता है? दो चीजें हैं, एक तो स्पीकर की ड्यूटी है, दिस इज द स्पीकर्स ड्यूटी, और द डेप्यूटी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ड्यूटी, कि आप जो है इसमें इंश्योर करेंगे इसको. यू विल बी डूइंग व्हाट? यू विल बी ensuring, okay, that everything is in order according to the rules and the conventions and the constitutional provision. But अगर members को ऐसा लग रहा है that the way the parliamentary proceeding is happening is not according to the way things should be, according to the rules के हिसाब से नहीं चल रही है parliament, then point of order can be there. And it is typically invoked by, typically मतलब कोई भी कर सकता है, but typically कौन लाता है? Opposition member, to challenge or scrutinize the government's action. So can I say that when the government brings any kind of normal bill and clubs it with the money bill, so is it against, okay, is it against that? ऑल राइट, तो ये जो है, अगर आप क्लब करेंगे मनी बिल के साथ तो क्या होगा? यू वांट टू इवेट द स्क्रूटिनी ऑफ राज्यसभा. सो उस समय क्या होगा? एट दैट टाइम द ऑपोजिशन मेंबर्स दे कैन रेज दिस इशू दैट हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज अगेंस्ट द दिस इज अगेंस्ट द हाउस. ओके, दिस इज अगेंस्ट द वे थिंग शुड बी डन. ओके, दिस इज अगेंस्ट द ऑर्डर. ऑल राइट. सस्पेंशन कब होता है? सस्पेंशन होता है जब प्रिविलेज का ब्रीच होता है. देखिए, आप ये समझिए ना कि अगर ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहा है, सो वो ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. एंड इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज हिमसेल्फ बीइंग पार्शियल एंड नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर, देन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज यूज्ड. ओके.
and no debate is allowed on a point of order, and it can significantly influence the session's flow by highlighting procedural breaches. तो प्रोसीजरल ब्रीचेस को इंश्योर करना ना हो, किसकी जिम्मेदारी है दोस्त? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी. इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दैट केस आप जो है, आपको अलाउड नहीं है. आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकते हैं एंड देन हाईलाइट दिस थिंग दैट द प्रोसीजर्स हैव बीन ब्रीच्ड, एंड द मेंबर रेजिंग द पॉइंट मस्ट प्रिसाइसली टेल कौन सा रूल या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ब्रीच हो रहा है. एंड द स्पीकर्स डिस्क्रेशन ऑन दिस इज फाइनल. ऑल राइट. सो आई थिंक डन. दी पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया. अब डिस्कशंस बाकी है हमारा, एंड डिस्कशंस के बाद रेजोल्यूशंस आर देयर, और फिर बिल्स है हमारा. बिल्स में इंपॉर्टेंट क्या है? वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द बिल इज पास्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, एंड देन फिनेंस बिल के टाइप्स जो होते हैं उसमें भी हमें जो है पता लगाना है. जॉइंट सिटिंग भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो ले दे के जो है हम लोग ऑलमोस्ट आर्टिकल 304 तक पहुंच चुके हैं. कल जो है हमारा ये 123 तक कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू जुडिशियरी टुमारो इटसेल्फ. ओके.